حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی ہدہد کے متعلق کہ ہدہد زمین کی میلوں نیچے پانی کا پتہ لگا لیتا تھا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، میں نے جو آیات پڑھا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی، یعنی وتفقد کا مطلب ہے دیکھ بھال کرنا، حاضری لینا یا باز فرض کرنا۔ تو سلیمان علیہ السلام معمول کے مطابق سفر میں جب روانہ ہوا تو ان کی پانی کی کمی بھی تھی، پانی ختم ہو چکے تھے، سفر میں پانی کی ضرورت تھی۔ تو یہ قول مشہور تھا ہدہد کے متعلق کہ ہدہد زمین کی میلوں نیچے پانی کا پتہ لگا لیتا تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے لشکروں کے ساتھ ہدہد کو بھی ساتھ رکھنے کا ارادہ کر لی کہ ہدہد کو بھی ساتھ لیا جائے تاکہ وہ زمین کے نیچے پانی کا پتہ لگا لے، سراغ لگا لے کہ کہاں تک پانی ہے، تو پھر جناتوں کے ذریعہ سے نکلوا لیں گے۔ تو ہدہد کے متعلق سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بات کیا ہے کہ ہدہد کو تو نظر نہیں آ رہے۔ اب ہدہد کو جب نظر نہیں آ رہا، سلیمان علیہ السلام کہنے لگا کہ ہدہد کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگا فقال ما لی لا اری الہدہد، تو آپ نے کہا کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس پرندے کے متعلق مشہور ہے کہ اللہ نے اس کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ اسے زیر زمین پانی نظر آ جاتا ہے اور اس کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ اس موقع پر سلیمان علیہ السلام بما لشکر کہیں جا رہے تھے، پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا اور پانی کی تلاش کے لیے ہدہد کی خدمت کی ضرورت تھی کہ وہ کسی جگہ زیر زمین پانی کی نشاندہی کرے تو جنات کے ذریعے سے فوراً نکلوا لیا جائے، مگر ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگا ام کان من الغائبین، کیا وہ غائب ہے یعنی غیر حاضر ہے؟ کہنے لگے اگر یہ ایسی بات ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں اس سے سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّ، یا میں اس سے ذبح ہی کر ڈالوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر وہ سزا سے بچنا چاہتا ہے تو کوئی کھلی دلیل پیش کرے، یعنی اپنے غیر حاضری کا کوئی معقول عذر پیش کرے سند کے ساتھ اگر وہ بچنا چاہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اختیار تھے۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر فرمایا کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، ہر کیڑے مکوڑوں کی زبان بھی سمجھتے تھے اور کیڑے مکوڑوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دی ہے، تو سلیمان نے جناتوں کو ان کی تابع فرما دی، ہوا کو ان کے لیے تابع فرما دی، ان کے لیے مسخر کر دی، تو سلیمان علیہ السلام ان سے سزا بھی دے سکتا ہے، ذبح بھی کر سکتا ہے، جب تک وہ صحیح سند کے ساتھ سچ بات نہ بتائے، صحیح بات عذر پیش نہ کر سکے، ورنہ ہم اس کو سزا دیں گے یا پھر اسے کیا کریں گے، ذبح کر دیں گے جب تک یہ عذر پیش نہ کرے۔ اب یہ باتیں سن کر کہ ہدہد کو تو سلیمان علیہ السلام نے قریب لے کر آنے کی بات کوشش کی اور ان کو ساتھ لے لیں گے، لیکن بات یہ ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ أَحَطَّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ یقین۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی غیر حاضری
का नोटिस लिया। तो बस ज्यादा देर नहीं गुजरी थी, थोड़ी देर के अंदर हुदूद पहुंचा। फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपने उज़र पेश करना शुरू कर दी कि मैंने एक ऐसी बात का अहता किया जिसका आपने नहीं किया। यानी आई सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं जिससे आप बेखबर हैं। वजिअतुका मिन सबई यकीन, और मैं आपके पास मुल्क सबा से एक यकीनी खबर लाया हूं ना। चींटियों की तरह हुदूद का अकीदा भी बड़े तौहीदी अकीदा थे। उनके ये ख्याल थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बेमिसाल सुल्तानत के मालिक होने के बावजूद भी इल्म मुहीत नहीं रखते थे, यानी अल्लामुल गयूब वो नहीं थे। चींटियों की भी बात यही था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लामुल गयूब नहीं, उन्हें हर चीज का इल्म होता, इल्म मुहीत नहीं रखते थे कि उन्हें हर चीज का इल्म होता। इल्म मुहीत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात, जो अल्लाह कादिर मतलब है, अलीम कुल है, वो अल्लाह की जात के अलावा इस कायनात के अंदर कोई भी इल्म मुहीत नहीं रखते हैं, ना कोई अंबिया और ना कोई औलिया। अब बात आगे, बात यह है कि मलका सबा के हुक्मरान कौन है और वहां के लोगों का क्या अकीदा है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते कि अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुल्तानत को बतदरीज वसी फरमाया था, लेकिन फिलिस्तीन, शाम और इनकी मताहत में दे, फिर मिस्र भी इनकी ज़ेर नगीन आ चुके हैं, आखिर में सबा भी उनकी सुल्तानत में शामिल हो गया। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये मालूम नहीं कि जो है ना कौम सबा बुत परस्ती करते हैं और कौम सबा की क्या हालत है, वहां कौन रहते हैं, वहां सुल्तानत किसकी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म मुहीत नहीं अता फरमाया। वो सिर्फ वो जानते जो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें वही के जरिए से बताते थे। वो गायब का इल्म नहीं रखते थे, गायब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात की है। अब मेरे दोस्तों कहने लगा, इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम। हुदूद कहने लगा कि मैंने वहां पर एक औरत को पाया जो अहले सबा पर हुक्मरानी करती है, अहले सबा पर वो हुक्मरानी करती है। वह ऊतियत मिन कुल्ली शै, और उससे हर किस्म का साजो सामान दिया गया, सारे चीजें उसके पास थे। यानी मतलब ये कि जरूरत की हर चीज उनके पास थी, वो किसी चीज की कमी महसूस नहीं करते, हर चीज से मुरद क़यामत तक नहीं। यानी उनकी जितनी जरूरियात है उनकी असला ले, वो असला से लेस था, जो सामान की जरूरत है उनकी हर किस्म की, फौज है, पुलिस है और उनकी लश्कर है, तमाम तर चीजें यानी जरूरियत की तमाम सामान उनके पास मुहैया थे, किसी चीज को उनके अंदर कोई कमी नहीं था। फिर कहने लगा वलहा अर्श अजीम, और उसके लिए एक अर्श भी है, यानी एक बड़ी अजीम शान तख्त है, जो तख्त 80 हाथ लंबा और फिर 50 हाथ चौड़ा, फिर 40 हाथ ऊंचा, ऐसी एक अर्श है उनके लिए ना। और कीमती जर और जवाहरात भी इनके पास है ना, इस किस्म से बनी कीमती जर और जवाहरात से वो बने हुए थे। वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्सि मिन दूनिल्लाह। हुदहुद कहने लगा कि मैंने उस मलका और उसकी कौम को सूरज के सामने सिजदा करते हुए पाया, और अल्लाह को छोड़कर ना, गोया के कौम सबा सूरज परस्त मुशरिक थी। हकीकत ये कायनात की तमाम चीजें, शजर और हजर और चरंद और परंद, सब अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं ना। जैसा कि खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कायनात की हर चीजें अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अल्लाह की हम्द सना करते हैं, अल्लाह की तकदीस और तहलील करते हैं। लेकिन ये कौम सबा जो है ना, ये लोग सूरज को पुरस्तश करते हैं, जब सूरज निकलते हैं ये लोग सूरज की पुरस्तश करते हैं, और फिर सूरज गुरूब होते वक्त भी ये सूरज की पुरस्तश करते हैं। आज मेरे दोस्तों अगर देखी जाए, ईरान के अंदर भी, मिस्र में, दीगर ममालिक में, आप देखे तो कराची शहर के अंदर भी समंदर के किनारा में जाकर बैठे हुए जब सूरज तुलू होती हैं तो वो सूरज की पुरस्तश करते हैं, और जब सूरज गुरूब होते हैं तो सूरज का पूजा करते हैं। इस किस्म के लोग कराची में भी पाया जाता है मेरे दोस्तों।
जब आप जाओगे तो देखोगे। अब बात यह है जिसकी वजह से जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया, मेरे दोस्तों के सूरज तुलू होते वक्त नमाज पढ़ना हराम है और सूरज गुरूब होते वक्त भी नमाज पढ़ना हराम है। यह हमारे लिए शरीयत मोहम्मदी के अंदर सूरज तुलू और गुरूब होते वक्त नमाज पढ़ना क्या है, हराम है। अब मेरे दोस्तों हुदहुद ने ये सारे बातें बता दी। बताने के बाद फिर यह भी पेशनगोई की है कि वज़य्यन लहुम शैतान व अमालहुम, कि उस मुश्रिक कौम के अमाल को शैतान ने मुज़य्यन करके दिखाते हैं। शैतान मुज़य्यन करके दिखाते हैं, यानी मुज़य्यन करके रखा, और मुज़य्यन करके दिखाने मतलब जो कुछ वो करते हैं तो शैतान उनकी तस्दीक करता, हाँ वाह वाह तुमने बेहतरीन अमल किया। शैतान उसको सनवार कर इनके सामने पेश कर देते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लिहाजा वो सूरज परस्ती से ना कभी भी किसी सूरत में भी तायब होकर अल्लाह ताला की वहदानियत की बजाय, वहदानियत को पहचानने की बजाय सूरज परस्ती को ही हकीकत समझ रखे हैं। अब मेरे दोस्तों बात यह है कि फसदानी सबील, और इसी तरह शैतान ने उनको सीधे रास्ते से रोक रखा है ना, फहुम ला यहतदून, वो हिदायत नहीं पाते, गलत रास्ते पर चलकर सही रास्ते से महरूम हो चुका है। मकसद ये था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस मुशरिक कौम के खिलाफ कार्रवाई करें। अब मेरे दोस्तों ये हुदूद तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बिल्कुल करीब हो गई, ये ऐसे खबर लेकर आया हुदहुद ने। अब मेरे दोस्तों कौवे को जलन होना शुरू हो गई, उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मुकदमा कर दी। क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये हुदूद अपने आप को कहते हैं कि जमीन की मीलों नीचे पानी उसको नजर आता है, उसको पानी का पता लग जाते हैं, तो जमीन के ऊपर उसके लिए जो जाल लगा देता है, जाल लगाते हैं तो उसको जाल को नजर नहीं आता। जमीन के ऊपर जाल उसको पकड़ने के लिए जाल लगाता है, उसको जाल नजर नहीं आता है। अब मेरे दोस्तों बात यहां पर यह है, अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जागे तो अज हुक्म मौला मुनकरस्त सदहजारा अक्ल दारद काफिरस्त मन बगी नमदाम रा अंदर हवा ताना फुर्सद चश्मे अक्लम रा खजा। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी ने कहा कि ये कौवा, इसको जलना शुरू हो गई, जलन हो गई उसकी जिस्म के अंदर कि ये हुदहुद सुलेमान अलैहिस्सलाम की करीब के हुआ। मेरे दोस्तों कौवा तो कौवा है, लिबास भी कौवा, लिबास भी काला है, जिस्म भी काला है और उसका दिल भी काला है। उसको बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की करीब होने लगा वो, और जिसकी वजह से जैसे हमारे भी मेरे दोस्तों इस कायनात के अंदर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जब सिद्दीक़ अकबर होते हैं और उनको गारे सूर के साथी बना लेते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उनकी अपने खलीफा अव्वल बना दी है। मेरे दोस्तों कुछ लोगों को जलन होना शुरू हो गए, तो वजह क्या थी कि कौवा के दलील तो इनको हजारों हैं, बड़े दलाइल अकली नकली दलाइल बड़े पेश करते हैं, लेकिन सही मानों में ये क्या है, ये मुनकर है, ये सही मानों में ये काफिर है, इनके अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है। बात ये था कि तरबियत की कमी नहीं थी, इनकी आंखें अंधा नहीं थी, तमाम तर चीजें इनके अंदर सही था। वो सही मानों में पानी की, जमीन की नीचे का पानी का पता लगा लेता है, लेकिन जब तकदीर आ जाती है मेरे दोस्तों फिर उसको जाल नजर नहीं आती, जमीन के ऊपर के जाल नजर नहीं आती, उसकी तकदीर आ गए थे। तो मेरे दोस्तों फैसला किसकी थी, तकदीर की, तो तकदीर के ऊपर इनकी यकीन नहीं है। इसी वजह से फरमाया आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल कदरि खैरिही, कि तकदीर की भलाई और बुराई के ऊपर ईमान लाना ये भी तो ईमान की एक हिस्सा है। मेरे दोस्तों तकदीर के ऊपर कि असल में इनकी तरबियत की कमी नहीं था, इनकी तकदीर आ गए थे, इनकी तकदीर की मामला थी, तकदीर की मामला थी, तकदीर इनकी साथ नहीं दिया, तकदीर आकर हाजिर हो गई कि ये जाल में फंस गई। अब वो अंधा नहीं थे, उस वक़्त में उनकी सामने का जाल भी नजर नहीं आया। जागे तो अज हुक्म मौला मुनकर सदा जारा अक्ल दारद काफिरस मन बगी नमदा मेरा अंदर हवा
आस्ताना फूशन चश्मे अकलम राखजा, कि मेरे तरबियत की कमी नहीं थी, मेरे तरबियत की कमी नहीं थी, मेरे तकदीर आ गई थी जिसकी वजह से मैं जाल मुझे नजर नहीं आया। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से कामिल मुबर्रत के अंदर भी लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त किया गया कि हुदहुद को जमीन की मेलों नीचे तो पानी नजर आता है, मगर जमीन के ऊपर उसके लिए लगाया गया जाल उससे क्यों नजर नहीं आता? तो उन्होंने जवाब दिया, इजा जाल कदरो आशियल बसरो, जब उसकी तकदीर आ जाती है तो फिर उसकी आंख अंधी हो जाती है, उससे करीब पड़ा जाल भी नजर नहीं आता है। कामिल मुबर्रत के अंदर शायद जो लिखा है, और ये जो सवाल किया मेरे ख्याल में वो भी कोई काला आदमी होगा जिसका लिबास भी काला, जिसका दिल भी काला, वरना वो ये सवाल क्यों किया? उसको तकदीर को पर ईमान नहीं था। अगर तकदीर को पर ईमान था होता तो ये कभी ये सवाल नहीं करते। जो तकदीर इनके साथ ना दे, मेरे दोस्तों, तकदीर के ऊपर ईमान लेना, लेकर आना, ये भी ईमान की एक हिस्सा है। सबसे बढ़कर जो वो तकदीर की मामला है, जो होना है वो होकर ही रहेंगे यकीनन, जो तकदीर में लिखे हुए थे, नसीब में जो लिखा हुआ है। अब मेरे दोस्तों, हुदहुद ने जब ये कहा, कहने के बाद फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कौवे की सारे मामलात को देख लिया कि नहीं भाई, क्या बात है कि तुम ऐसे बात कर रहे हो, तो जमीन के नीचे का। फिर वो जवाब दे दी कि हकीकत में बात यह है जो अल्लामा रूमी ने फरमाया कि हमारे तकदीर, मेरे नसीब मेरे साथ नहीं दी है, मेरे नसीब आ गए थे, मेरे तकदीर आ गए थे, जिसकी वजह से ना फरमाया इजा जाल कदरु आशियल बसरु, जब उसकी तकदीर आ जाती है तो फिर उसकी आंख अंधी हो जाती है, उससे करीब पड़ा जाल भी नजर नहीं आता। हकीकत में बात यह है, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बात के ऊपर यकीन कर ली कि हकीकत है। अब फरमाया, हुदूद ने आगे भी कहा कि अल्लाह यसजुदु लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबा फिस समावाति वल अर्दी व यअलमु मा तुख्फून व मा तुअलिनून। जब ये फरमाया मेरे दोस्तों कि अल्लाह यसजुदु लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबा फिस समावाति वल अर्दी, काबे सबा के लोग क्यों नहीं सिजदा करते? सिर्फ अल्लाह ताला को जो आसमान और जमीन की पोशीदा चीजें निकालता है, जो आसमान और जमीन की जो पोशीदा चीजें निकालता है, यानी अल्लाह ताला की जात हुआ जो आसमानों में पोशीदा पानी नाजिल करके उससे तरह तरह की सब्जियां उगाता है, जमीन के नीचे से पानी, तेल, लोहा, सीसा, सोना, चांदी और दीगर मादनियत निकलता है। वयअलमु मा तुख्फून व मा तुअलिनून। फिर हुदूद ये भी कह रहे कि हर उस चीज को जानता है जिसको तुम छुपाते हो या जाहिर करते हो। अल्लाह ताला से कोई चीजें मख्फी नहीं है, अल्लाह ताला से कोई चीज मख्फी नहीं है, सब कुछ अल्लाह जानता है। ये कौम सबा वाले अल्लाह को क्यों नहीं सिजदा करते हैं, जो आसमानों में छुपे हुए चीजों को जानते हैं, आसमानों से पानी बरसाते हैं, फिर जमीन के नीचे हर किस्म की मादनियत को निकालने वाले, जो अल्लाह ने छुपा कर रखे हर किस्म की मादनियत को, पानी, तेल, लोहा, सीसा, सोना, चांदी और दीगर मादनियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छुपा कर रखे हैं। फिर वो तुम्हारे दिलों की राज को भी जानता है। फरमाया वो अल्लाह की जात जो तुम छुपाते हो और जो जाहिर करते हो उसको भी जानता है। वो अल्लाह के सामने कोई चीज मख्फी नहीं है, वो अल्लाह कादिर मतलब है और आलिम कुल है। ऐसे खुदाबंद कुद्दूस को छोड़कर कामे सबा सूरज की पूजा क्यों करते हैं? वो खुदा ताला के सामने क्यों नहीं सिजदारेज होते हो जाती? हुदूद ने मजीद का अल्लाह की जात वो है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कि जिसकी सवा कोई माबूद नहीं, हर किस्म की इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ वही अल्लाह की जात है। और रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वो अर्श अज़ीम का मालिक भी वही है। फिर वो दूसरों की सामने क्यों सिजदा करते हैं? ये गया फ़क़ाला हत्तु। मेरे दोस्तों, यहां तक ये हुदूद की बात थी। हुदूद ने यहां तक कह दिया कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम,
یہ حدود نے اپنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی. اپنا توحید کی بات بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بیان بھی, توحید کی بات اور رسالت کی بات بھی کہہ دیے کہ وہ اللہ کی ذات ہے قادر مطلق. وہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کو کرو, اللہ کی سوا کسی کو سجدہ مت کرو. تم اللہ کے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو؟ اتنی بڑے بڑے مشرک لوگ ہیں, یہ اللہ کو کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ یہ دوسرے کو کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ سورج کو کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ سورج تو اللہ کی بنے ہوئے چیز, وہ اللہ کی مخلوقوں میں سے ہیں, تو مخلوق کو اللہ کے ساتھ کیوں شریک کرتے یہ لوگ؟ آگے سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا, اچھا تم نے یہ سارے بات بتا دی, اب سن لو کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. اب باتیں سامنے آ جائیں گے. سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین, ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو اپنی بات میں سچا ہے یا تو نے جھوٹ بولا ہے. اب امتحان ہو جائے گا تیرا بھی. اس سے بیشتر سلیمان علیہ السلام حدود کو سخت سزا دینے یا ذبح کر ڈالنے کا اعلان کر چکے تھے. اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام کی سزا سخت سزا دوں گا یا پھر اس کو ذبح کر دوں گا, جب تک وہ اپنے سامنے صحیح عذر پیش نہ کرے, اپنے دلائل صحیح سند کے ساتھ باتیں پیش نہ کرے, تو اس کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. آپ کہنے لگا اذا بکتابی ھذا فالقیہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. اے حدود, یہ لے میری چٹھی, فالقی الیہم, اس قوم سبا کے لوگوں کے سامنے ڈال دو, میرا یہ خط ان تک پہنچا دو, میرے یہ خط ان تک پہنچا دو. ثم تول عنہم, پھر ان سے پیچھے لوٹاؤ, یعنی پلٹ جاؤ, یہ ڈال کر ان کے سامنے تم واپس آ جاؤ. او فانظر ماذا یرجعون, اور دیکھو کہ اس خط کا کیا جواب دیتے ہیں, اس خط کا جواب یہ کیا دیتے ہیں اس قوم والے, اور ملکہ سبا کیا جواب دیتی ہے, دیکھ لو. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہدہد فوراً خط لے کر ملکہ سبا کی محل پر پہنچ گیا. محل پر پہنچا, اس وقت گھر کی دروازے بند تھے, ان کی محل بند تھا, چاروں طرف سے بند تھا. البتہ ایک روشندان کھولا تھا, اسی روشندان سے جو اس روشندان جس کی راستے وہ ملکہ کی خوابگاہ میں داخل ہو گئے, اسی روشندان سے ملکہ کی خوابگاہ میں داخل ہو گئے جہاں وہ آرام کرتی ہے, اس کی سینے کی قریب رکھ دیا, اور پھر اس روشندان کے راستے باہر نکل آیا. ہدہد جب ملکہ نیند سے بیدار ہوئے تو اس نے اپنے قریب خط پڑا پایا. اس نے اپنے تمام درباریوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے کہا اور ان سے اس طرح گویا ہوئی, قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. وہ کہنے لگی ملکہ سبا کہ اے میرے درباریوں, میرے پاس ایک عزت والا خط ڈالا گیا, ظاہر ہے کہ خوبصورت سر بمہر ہے, اور بڑی بادشاہوں کی خط ہوتی ہیں, اس میں مہر لگے ہوئے ہوتی ہیں, اور پھر بادشاہی لیٹر ہیڈ میں کوئی خطوط کسی کے پاس بھیجے کوئی خط, پھر اس کی قدر ہی کچھ اور ہوتی ہیں, اور اس کی ڈیمانڈ بھی بڑی ہوتی ہے. اور لفافہ میں عمدہ طریقہ سے لکھا ہوا شاہی خط تھا, جس سے ملکہ نے اندازہ لگایا یہ کسی معزز شخصیت کی طرف سے آیا ہے, کوئی ایسے بندے کا نہیں ہے, بڑے اعلیٰ درجے کے بندے کی طرف سے آیا. چنانچہ اس نے اس سے باعزت خط کرا دیا اور بنایا اور بتایا انہو من سلیمان. وہ پڑھنا شروع کر دی, ملکہ نے پڑھنا شروع کر دیا, انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. انہو من سلیمان, کس کی طرف سے ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط ہے. انہو من سلیمان,
रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब आसपास के किसी मुल्क में अपने कासिद भेजते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे लिखा करते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही आदत मुबारक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी मिलती हैं इस किस्म की बातें। अब मेरे दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तारुफ भी करा दी उसमें, फिर ये खत सुलेमान की तरफ से है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बेशक मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो मेहरबानी करने वाले निहायत रहम वाले हैं, ये कहकर शुरू किया। फिर अपने तारुफ भी कराया, इन्नहु मिन सुलेमान के बाद इन्नहु मिन सुलेमान, फिर अपने तारुफ किया कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरगज़ीदा बंदों में से हूं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे मंतिक़त तैर यानी परिंदों का बोलियां सिखाया, जिन्नातों को मेरे ताबे की, हवाओं को मेरे लिए मुसक्खर कर दी, हवाओं को मेरे लिए ताबे की। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे नबूवत अता फरमाया, मैं साहिबे सहीफा वाले हूं, और अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने मुझे ना पूरे कायनात के बादशाह बनाकर इस दुनिया के अंदर विजय है और नबूवत भी अता फरमाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे तारुफ करा दी है कि चरण परन सब चीजों की जबान मैं समझता हूं। फिर मेरे ताबे में जिन्नाते भी है, इंसान भी मेरे ताबे में है। मेरे लिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर किस्म की परिंदे चरण परंद को मेरे ताबे कर दिया, हवाओं को भी मेरे ताबे कर दिया। फिर मेरे पास भरपूर लश्कर भी है, मेरे पास भरपूर लश्कर भी है, हर किस्म की साजो सामान है। मैं भी किसी चीज से कमी नहीं हूं। अल्लाह ने सब कुछ हमें दी है। ये कौन फरमा रहे? सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये अपने तारुफ करा दी, अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। फिर कहने लगा, कौम सबा के लोगों मेरे सामने शरकशी अख्तियार ना करो। अल्लाह तालू अलैया, खबरदार तकब्बुरी नहीं करना, शिरकशी नहीं करना, बहादुरी नहीं करना मेरे सामने, गुरूरियत को थाम कर हमारे पास आना, मेरे मुकाबला में ना आना, खबरदार। अल्लाह तालू अलैया वातूनी, कि शिरकश मेरे सामने शिरकशी अख्तियार ना करो, तकब्बुर और गुरूर ना करना और मेरे मुकाबला में ना आना। मैं कौन हूं तुम्हें पता है? वातूनी मुस्लिमीन, सारे तारुफ करा दिया, बल्कि इताअत गुजार बनकर मेरे पास चले आओ। मतलब यह था कि कुफ्र और शिरक को छोड़कर सही दीन इख्तियार कर लो। अल्लाह वादहू ला शरीक लह को, अल्लाह वादहू ला शरीक लह के ऊपर ईमान लेकर आ जाओ, और अल्लाह की नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर भी ईमान लेकर आ जाओ, अल्लाह की तौहीद और रिसालत के ऊपर और माद पर, फिर बौस बादल मौत के ऊपर, फिर तकदीर की भलाई और बुराई के ऊपर, तमाम तर चीज़ों के ऊपर, अल्लाह की तमाम रसूलों के ऊपर, तमाम फिरिश्तों के ऊपर और आखिरत के ऊपर ईमान लेकर आ जाओ, और फिर कलमा पढ़कर हाजिर हो जाओ। ये कुफ्र शिरक को छोड़कर सही दीन इख्तियार कर लो।